Now today we are going to start with chapter number 2, the wise minister. ठीक है, इसमें हम क्वालिटीज पढ़ेंगे. इसमें चैप्टर में हमें क्वालिटीज बताई है परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की. ठीक है. Once upon a time there lived a king in a small state of North India. He was a noble and a generous king. He loved truth and justice, and the subjects in his kingdom were happy and prosperous. ठीक है. एक टाइम की बात थी, there was a king in the state of North India. ठीक है. वो बहुत ही ज़्यादा नॉबल और जनरस किंग थे, एंड ही लव ट्रुथ एंड जस्टिस. उनको ट्रुथ और जस्टिस दोनों चीज़ बहुत पसंद थी. सब्जेक्ट इस किंगडम वर वेरी हैप्पी एंड प्रोस्पेरस. ठीक है. बहुत ज़्यादा हैप्पी और प्रोस्पेरस था. द किंग हैड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु ऑफ्टन एडवाइज हिम इन वेरियस स्टेट अफेयर्स, एंड द किंग ऑल्सो ओबेड दैम ट्रुथफुली. ठीक है. इसके काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स थे जो उसको एडवाइस करते थे ऑन द वेरियस स्टेट अफेयर्स. ठीक है. द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट वॉज वेरी लर्न एंड वाइज. He was real jam in his council of ministers. The king always valued his opinion and acted on his advice. But he was getting old, so he decided to retire from active life and devote the rest of life in the company of holy men and service of God. जो किंग थे वो अपने जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स थे उनकी बातों को, ओपिनियंस को, एडवाइस को मानते थे. ठीक है. जैसा वो कहते थे वो वैसे ही करते थे. वो क्योंकि ओल्ड हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो रहे थे, सो उन्होंने इसलिए डिसाइड करा दे रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव लाइफ. मतलब एक्टिव लाइफ से रिटायर करा और वो किसके लिए सर्विस देने लगे? गॉड के लिए. One day chief minister expressed his desire to the king. The king began said he knew that it was very difficult to find suitable man as wise as chief minister to look after the state affairs. जब वो एक दिन क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर ने डिज़ायर एक्सप्रेस करा किंग को, और वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया क्योंकि उसको लगा इनके अलावा कोई और अच्छे से स्टेट अफेयर्स को देख ही नहीं सकता. However, he did not want to stop him from following his wish, so he politely asked the minister to search out a suitable person who could take up the responsibilities of the state affair after him. ठीक है. तो फिर पोलाइटली मिनिस्टर उससे पूछता है कि तुम्हारे बाद कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा. ठीक है. एंड द चीफ मिनिस्टर एग्रीड, और चीफ मिनिस्टर एग्री हो गया. The chief minister thought for some day, and then he asked royal announcer to announce that a sports meet would be held in the capital next month. All the young men of the kingdom should take part in that meet. He should also announce that the most eligible participant would be appointed in the royal court. The chief minister himself would judge a person from amongst all the participants. तो चीफ मिनिस्टर फिर रॉयल जो अनाउंसर था उससे अनाउंस करवाया कि एक स्पोर्ट्स मीट होने वाली है और सबको पार्टिसिपेट करना है जो इसमें जीतेगा. ठीक है. और वो एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स को अनाउंस करेगा कौन? चीफ मिनिस्टर. ठीक है. The announcement sent a wave of excitement among the young men of the kingdom. Everybody was interested to take part in the sports meet and serve the royal court. So young men in the large number of very nook and corner of the kingdom assembled in the capital tried to their luck. The chief minister asked his men to lodge those participants in the royal guest house and look after them well. All of them were allowed to spend their time in the way they liked. ठीक है. सब बहुतों को जो young men थे सब बहुत excitement थे स्पोर्ट्स मीट में पार्टिसिपेट करने के लिए, और ठीक है उसका एक्टिव पार्टनर बनने के लिए. ठीक है. उसको फिर जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा मेन को टू लॉज देयर पार्टिसिपेंट्स इन द रॉयल गेस्ट हाउस. जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे उनको रोकिए और फिर जो वो चाहते हैं जो अपनी लाइक है वो उन्हें करने दीजिए. दे यंग मैन इन द रॉयल गेस्ट हाउस क्वाइट हैप्पी. They were getting good food and everything they needed without any cost. Some of them loved to spend their time in idle gossip. Some would have loved to just sleep the day, and some others spent their time in reading books. सबको बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि वहाँ पे खाना वगैरह फ्री हो रहा था बिना किसी कॉस्ट पे. कोई बातें कर रहा था, कुछ वहाँ आपस में सोने में टाइम बिता रहे थे. ठीक है. अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे. Meanwhile, the chief minister had asked few of his trusty men to secretly keep a watch on these activities of this young man. Every day he would call a group of young men from amongst them and ask some simple question and would send them back after selecting only one of the participants. Many days passed in this way. At the last, only for a few them were left. ठीक है. वो ग्रुप में बुलाता था, उनसे क्वेश्चन पूछता था, फिर उनमें से सेलेक्ट करता रहता था एक को. ठीक है. ऐसे करता था, ऐसे ही होता रहा. उसको थोड़े से ही पार्टिसिपेंट्स बचे थे. At last, the chief minister announced the date of sports meet. The participants were asked to assemble in a big ground early in the morning, where they had to show their skill. The king, accompanied by the chief minister and some of the other courtiers, came to watch their talent. All the participants knew that it was the only test before one could get a good job in the royal court. Therefore, each of them were eager to do this
हिज बेस्ट। ठीक है, तो उसने कहा कि अब आपको कल सबको अपना टैलेंट दिखाना, अपनी स्किल्स दिखानी है, सबको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, द किंग अकम्पनीड बाय द चीफ मिनिस्टर एंड देयर कंट्री टू वॉच। तो किंग चीफ मिनिस्टर के साथ आते हैं और उनका जो प्रोग्राम स्पोर्ट्स में चल रहा था उसको वॉच करते हैं। ठीक है, देयरफॉर ईच ऑफ देम वर ईगर टू डू हिज बेस्ट, और हर एक सोच रहा था कि मुझे बेस्ट करना। They participated in different games. None of them were inferior to the other in case. Nevertheless, the first 3 winners of every game was retained for the next round. At last, there was only 15 candidates left. ठीक है, 3 winners थे, लास्ट में क्या हुआ, खाली 15 कैंडिडेट बचे थे। The last event of the day was marathon race. The participants were asked to go around the main market area of the capital within a stipulated time. The winner of the race would get a converted points. लास्ट मैराथन बची थी, कहा कि तुम मार्केट से भागते रहो, जो जीतेगा उसको एक कन्वर्टेड अपॉइंटमेंट मिलेगा। द रेस बिगिन, वन ऑफ द यंग मैन रैन सो फार दैट ही soon overtook all the other candidates. They covered the market area and started returning back to the games arena. ठीक है, रेस शुरू हो गई, young man ran so fast that he soon overtook all the other candidates. They covered the market area. ठीक है, उन्होंने पूरा मार्केट एरिया को कवर करा and they reached the game arena. The man was still well ahead for all other participants. Everybody was sure that he would win the race and get his prize. और सबको ये था कि यही जीत जाएगा और इसे ही प्राइज मिल जाएगा. Suddenly he stopped there on the side of the road, saw a lying an old man groaning in great pain. He hesitated for a moment, looked back at the other contestants and then turned and moved towards the old man. वो एक ओल्ड मैन को देखता है, वो पेन में घरा रहा था, मतलब दर्द हो रहा था उसके, तो पहले तो सोचता है सारे कंटेस्टेंट्स को देखता है कि सब भाग रहे हैं, पर लेकिन वो दोबारा से वापस देखता है और उस ओल्ड मैन के पास आ जाता है. The old man had strained on his leg. He was unable to stand or move. The man sat beside him and with a great care and helped him stand on his feet. Then he accompanied the old man up to his house on the other side of the road. By the time he came back, which was too late, all the participants had already reached the arena. Suddenly the man entered the arena and stood behind happy participant. ठीक है, वो मैन को उसके वो चल नहीं पा रहा था, मूव नहीं कर पा रहा था. ठीक है, तो उसको उसके घर छोड़ने जाता है उसके साथ, और उसके बाद जब वो वापस आता है तो देखता है बहुत लेट हो गया था, सारे पार्टिसिपेंट्स ने रेस कंप्लीट कर ली थी, और जो हैप्पी पार्टिसिपेंट्स थे वो जाके उनके पीछे खड़ा हो जाता है. द चीफ मिनिस्टर वॉज वॉचिंग एवरीथिंग फ्रॉम हिज सीट. सून ही केम डाउन टू अनाउंस द विनर ऑफ द डे. ही अनाउंस द नेम ऑफ द विनर एंड as promised offered him a good job for in the royal court. Then he gave away prizes to the other participants also. At last he come to the young man. ठीक है, उन्होंने प्राइजेस सीट बैठे, चीफ मिनिस्टर सब कुछ देख रहे थे, पर उन्होंने प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करे और सबको जिनको जो जो अपॉइंटमेंट देते थे, को जो गुड जॉब्स में अपॉइंटमेंट दिए. फिर वो यंग मैन के पास आता है, जो यंग मैन थे इनके पास आता है चीफ मिनिस्टर. यू फेल टू फिनिश योर रेस, इट इज स्टिपुलेटेड टाइम, देयरफॉर यू आर नॉट एंटाइटल फॉर एनी प्राइज. ही सेड. द मैन हैंग हिज हेड सडनली but said nothing. The chief minister thanked all the participants and requested them to return home. ठीक है, वो कुछ नहीं बोलता है, मैंने बस अपना सर नीचे रखता है. उन्हें चीफ मिनिस्टर ने सबको थैंक यू करा और सब ने घर चले. And next day a messenger of the king court came to a man and gave him a letter from the king. He read the letter which said, the real aim of the sport meet was not to only to test the talent of the participants but also moral select. तो उस लेटर किंग लेटर भेजता है. तो लेटर में क्या लिखा था, खाली जो रियल एम है स्पोर्ट्स मीट का वो ये नहीं है कि अपना टैलेंट दिखाओ, लेकिन क्या है, दैट ऑल्सो दैट मॉरल कैरेक्टर डू यू हैव, कि आपका जो करेक्टर है वो कैसा है. एक्चुअली आई एम इन नीड ऑफ अ मैन हु हैज़ नॉट ओनली फिजिकल एबिलिटी बट क्वालिटीज ऑफ हर्ट लाइक कंपेंशन, पिटी, सिंपैथी एंड काइंडनेस, सो दैट ही कैन लुक आफ्टर माई सब्जेक्ट्स एंड वर्क सेल्फिशली फॉर देयर वेलफेयर. ठीक है, वो कहता है कि मुझे नीड ही ऐसे इंसान की है कि जिसके अंदर क्वालिटी ऑफ कंपैशन हो, पिटी हो, सिंपैथी हो, जो मेरे इसको अच्छे से देख ले. ठीक है, और वो सेल्फिश ना हो. यू हैव सक्सेसफुली पास्ड इन बोथ द टेस्ट, देयरफॉर माय चीफ मिनिस्टर who has grown old and wished to retire from the active has suggested me your name as a right man to be appointed as the next chief minister of the kingdom. तो कहता है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहे हैं, ओल्ड हो रहे हैं, वो अपनी एक्टिव लाइफ से हटना चाहते हैं, तो इसलिए जो हमारे किंग ने है उन्होंने तुम्हारा नाम दिया है फॉर द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर. बट अपॉन हिज एडवाइस आई हैव डिसाइडेड टू द यंग मैन कुड रीड नो फर्दर एज हिज आईज वर फुल ऑफ टीयर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस. ठीक है,
तो यंग मैन इतना मतलब एक उस हैप्पीनेस से उसकी आंखों में पानी, मतलब वो इतना रो रहा था कि वो इतने टीयर्स, इतनी जॉय टीयर्स थे उसके, मतलब खुशी के आंसू थे कि वो उसको पढ़ भी नहीं पा रहा था. ठीक है. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. थैंक यू.